السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، وفي رواية فلا أشهد على جور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام بزرگان دین، حفاظ کرام، علماء کرام اور سامعین اعظام، دوستوں، بزرگوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں 6 چیزوں کا حکم عنایت فرمایا ہے. 3 چیزیں کرنے کی ہیں اور 3 چیزیں نہ کرنے کی. پہلی 3 چیزوں کا حکم فرمایا کرنے کا، دوسری 3 چیزوں کا حکم فرمایا نہ کرنے کا. پہلی 3 چیزیں: نمبر 1 عدل، نمبر 2 احسان، نمبر 3 ایتاء ذی القربی. عدل کیا ہے؟ عدل کہتے ہیں اعتدال کو، یعنی ہر چیز میں برابری ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، تو وہ عدل ہے. آج جو مجھے گفتگو کرنی ہے یہ صرف عدل پر گفتگو کرنی، لیکن پوری آیت کا میں ترجمہ سنا دیتا ہوں جو میں یہ ٹاپک لے کر چلا ہوں. تیسرے ہفتے میں نے عرض کی تھی، اور پچھلے ہفتے تو والد محترم کا بیان ہوا تھا حفظ قرآن کے متعلق. غالباً میں تو نہیں تھا، قاضی بازار میں میرا بیان تھا. تو اسی ٹاپک پر مجھے اس آیت کریمہ کے موضوع پر بیان کرنا ہے. یہ جامع ترین آیت میں سے، اس پر میں نے واقعہ بھی سنایا تھا کہ حضرت اقسم بن سیفی جو انتقال کر گئے، لیکن اپنے جماعت والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو نصیحت کر کے چلے گئے کہ تم پہلے لوگوں میں سے ایمان لا کر قائد بن جاؤ، پیچھے رہنے والوں میں سے مت بننا. یہ واقعی سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ مکارم اخلاق، یہ آیت سن کر کہ یہ مکارم اخلاق اور حسن اخلاق اور معاشرت، حسن معاشرت کی تعلیم دیتے ہیں، اس لیے سچے نبی ہیں. ان کو مان کر کامیاب ہو جاؤ اور پہلے لوگوں میں سے ہو جاؤ، قائد بن جاؤ، لیڈر میں سے بن جاؤ. وہ بول کر چلے گئے، گزر گئے. تو یہ جامع ترین آیت ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، یعنی انصاف کا، احسان بھلائی کا، ایتاء ذی القربی رشتہ داروں کو دینے دلانے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی اور روکتا ہے تمہیں بے حیائی سے اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے. کیوں؟ یعظکم اللہ لعلکم تذکرون، کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. تو عدل کیا ہے؟ عدل انصاف، برابری. قرآن میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرمایا: لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیاں دے کر، اور وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو بھیجے. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ تول سکیں، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اور انصاف کے ساتھ کام کیا کریں. مفسر قرآن علامہ ابن العربی کہتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ، عدل یہ ہے کہ اپنے رب کی
इबादत को अच्छे तरीके से बजा लाओ, यानी सुनन और आदाब के साथ इबादत को बजा लाओ और उसकी मर्जी को अपने मर्जी पर मुकद्दम हो, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को, उसकी मर्जियात को अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर तरजीह दी जाए और उसकी खुशनुदी को अपनी खुशनुदी पर मुकद्दम रखो। अपनी खुशनुदी को कोई जरूरी नहीं कि उस पर अमल किया जाए, अल्लाह की खुशनुदी को मुकद्दम रखो और अहकाम शरीयत के पाबंद बन जाओ। और आखिर में अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया है उससे रुक जाओ, यह अदल। 4 चीजें बयान कर दी कि अपने रब के साथ अदल ये है कि उसकी इबादत सुनन और आदाब के साथ अदा की जाए और अपनी नफसानी ख्वाहिशात, उसकी मर्जियात पर उसको तरजीह दी जाए और अपनी खुशनुदी को, रब की खुशनुदी को अपनी खुशनुदी पर मुकद्दम रखा जाए और अहकाम शरीयत के पाबंद बन जाओ और ममनू बातों से, जिससे अल्लाह ने रोका है उससे रुक जाओ। यह अदल है अपने रब के साथ। यह अदल हर चीज में होगा। अब इबादत में अदल यह है कि सुनन और आदाब के साथ अदा किया जाए। मुआमलात में अदल यह है कि हराम और हलाल देखा जाए, इम्तियाज किया जाए, मुमताज किया जाए कि हलाल कौन है, हराम कौन है। हदीस में आया तलब कसबिल हलाल फरीज़तुन बादल फरीज़ा, के हलाल कमाई को तलाश करना फर्ज के बाद एक अहम फरीजा है जो इंसान के साथ हमेशा लगा हुआ रहता है कि कैसे मुझे हलाल कमाई मिल जाए, हलाल रोजगार मिल जाए। और जब तक वो हलाल कमाई में लगा रहता है वो इबादत में होता है। आप जरा देखें, क्योंकि वो हराम कमाई से बचता है, गुनाहों से बचता है, वो हलाल कमाई में लगा हुआ है, इबादत में। तो मुआमलात में अदल ये है कि हलाल और हराम को मुमताज किया जाए कि हलाल कौन है, हराम कौन है, इससे बचा जाए, हराम से बचा जाए, हलाल को इख्तियार किया जाए। मुआमलात में अदल। मुआशरत में अदल क्या है? मुआशरत में अदल यह है नर्म रवी, नर्म रवी के साथ और हुस्न अखलाक के साथ पेश किया जाए अपने आप को मुआशरत में, घरेलू मामलात में। इसको मुआशरत कहते हैं। इसमें यह है कि नर्म रवी के साथ, हुस्न अखलाक के साथ, तदबीर के साथ, हुस्न तदबीर के साथ ये मुआशरत को सुलझाया जाए। ये अदल, मुआशरत का अदल। तो अदल हर चीज में पाई जाएगी। उमर बिन अब्दुल अजीज, इनके बारे में आपने सुना होगा, कितने बड़े आदिल थे। उनके जमाने में भेड़िया भी और बकरी भी दोनों एक साथ पानी पीते थे, लेकिन भेड़िया कभी बकरी पर हमला नहीं करता, जुर्रत ही नहीं कर सकता। ऐसा आदिल कैसे पैदा हो गया कि जानवरों में भी आदिल आ गया? उन्होंने हर मामले को आदिल के साथ तोला, इंसाफ और बराबरी को देखा, तो अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर भी उनका रौब बिठा दिया। एक मौके पे एक शख्स आया दूर दराज से और देखा कि भेड़िया बकरी पे हमला कर रहा है। कहा कि उमर बिन अब्दुल अजीज फौत हो गए क्या? और तहकीक करने पे पता चला कि आज ही उनका इंतकाल। आदिल ऐसा कायम किया कि जानवरों में भी आदिल आ गया। तो उमर बिन अब्दुल अजीज मोहम्मद बिन काब को बुलाते हैं और पूछते हैं, मुझे बताओ, मुझे अदल की तालीम दो, अदल क्या है? तो उन्होंने कहा, बहुत खूब अमीरुल मोमिनीन, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत अहम सवाल किया है। तो सुनिए अदल क्या है। अपने बड़ों के साथ उनको बाप का दर्जा दो, उनको बाप समझने लगो, उनके लिए सआदतमंद बेटा बन जाओ अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ बाप बन जाओ, बाप जैसा मामला करो। बाप जैसे छोटों के साथ, यानी अपने बेटों के साथ मामला करता है, ऐसे छोटों के लिए बाप बन जाओ। और अपने हम उम्रों के साथ, जो आपके हम उम्र हैं, उनके साथ भाई जैसा बेतकल्लुफ भाई बन जाओ। और अपनी औरतों के साथ अच्छा मामला करना, ये आदिल है, ये आदिल है। और दीगर लोगों के साथ
अच्छे अखलाक से पेश आओ, उनकी मामला फहमी करो, मामला को समझो, फिर इंसाफ के साथ पेश आओ, यह अदल है। उन्होंने सबका एक लेवल बता दिया, तरीका बता दिया। तो मेरे भाइयों, आदल हर चीज में, आदल के बगैर हुस्न मुआशरत आ ही नहीं सकता, आदल के बगैर हुस्न मुआमलत आ ही नहीं सकता, आदल के बगैर हुस्न इबादत आ ही नहीं सकती। मैंने बताया ना कि इबादत में आदल यह है कि सुनन और आदाब के साथ इबादत की जाए। आज हमारा हाल क्या है आप देख लीजिए, और दिनों का तो छोड़िए, सिर्फ जुमा को ले लीजिए, जुमा को ले लीजिए, क्योंकि हम तो अपने अमल से बतलाते हैं कि हम जुमा के दिन ही अल्लाह का रिज़्क़ खाते हैं, जुमा के दिन ही अल्लाह की दी हुई जमीन में रहते हैं, जुमा के दिन ही अल्लाह का दिया हुआ कपड़ा पहनते हैं, जुमा के दिन ही सारे अल्लाह के जो जो दिए हुए हैं सबको हम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ जुमा के दिन। जुमा के अलावा तो हम इस्तेमाल करते ही नहीं ना, तो इबादत के लिए क्यों आएंगे? पहले तो ये। दूसरा ये कि अगर आ भी गए भूले भटके किसी तरह भी आ गए जुमा के दिन, तो आदल और इंसाफ अल्लाह की इबादत में ये है, ना तो हम जुमा से पहले की सुन्नत सही से अदा करते हैं ना बाद में, ऐसे भागते हैं जैसे अस्तबल से घोड़े और बकरी और गाय निकलते हैं। भाई मस्जिद है, ये मस्जिद है, इबादत का घर है, कोई ग्वाल घर नहीं है कि आप गाय बकरी की तरह निकले। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, एक हदीस में आया कि जिस शख्स का दिल मस्जिद में अटका हुआ हो कि कब जोहर की नमाज होगी, कब असर की नमाज होगी, कब मगरिब की नमाज में फौरन चला जाऊं, कब अजान हो जाए मैं चला जाऊं, वो कल क़यामत के दिन अर्श के साए में हो। और हम और आप ऐसे निकलते हैं मस्जिद से जैसे सबसे बेसुकून की जगह ये है। हदीस में आया अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा और अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, कि अल्लाह को सबसे बेहतरीन जगह, पसंदीदा जगह वो मस्जिद है। वअबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, सबसे बदतरीन जगह अल्लाह के नजदीक बाजार है। आज सोच लीजिए हमारा कारोबार, हमारा ज्यादा वक्त कहाँ गुजर रहा है, मस्जिद में गुजर रहा है या बाजार? तो इबादत के साथ हमारा तो अदल इंसाफ है ही नहीं, और मुआमलात में क्या होगा और मुआशरत में क्या होगा? जरा गौर फिक्र से सुनिए और अपने अमल में लाने की कोशिश कीजिए। जुमे से पहले 4 रकात सुन्नत, जुमा के बाद 6 रकात सुन्नत, ये पाबंदी से अदा करना है। जुमा के बाद जो 6 रकात सुन्नत है, मुफ्ताबी कौल के मुताबिक 6 रकात, 4 रकात फिर 2 रकात, और कोई पढ़ते हैं तो 4 रकात पढ़ के चल दिए, कोई पढ़ते हैं तो 2 रकात पढ़ के चल दिए, कहां भाग कोई एक आध होते हैं जो 6 रकात पढ़ के जाते हैं। अल्लाह तौफीक दे दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और सीखना चाहिए। तो इबादत में जो सुनन और आदाब है उसकी रियायत करने को आदिल कहते हैं। इबादत में हमने इबादत में ही आदिल को छोड़। खैर, मुझे और भी बहुत कुछ अर्ज करनी है। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि जाओ खैबर वाले वहां पर जो बागात हैं उनके फल का जायजा लेकर। वो जब आए तो बागात तो दिए गए थे यहूदियों को, तो यहूद लोग उनको कुछ रिश्वत देने का इरादा किए। उनकी बातों से पता चला कि वो रिश्वत देना चाहते हैं ताकि ये हमारे साथ थोड़ा सा नरमी का मामला करें। तो अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैं जिनके पास से आया हूं मुझे पूरे रुए जमीन में वो सबसे ज्यादा महबूब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तुम लोग मेरे नजदीक खिंजीर की तरह हो, लेकिन सुन लो, ना तो उनकी मोहब्बत ना तुम्हारा बोझ, तुम्हारी दुश्मनी मुझे अदल इंसाफ को रोक नहीं सकती मुझसे। मैं अदल इंसाफ में जर्रा बराबर भी कमी नहीं कर सकता। तुम्हारा जो हक है तुम्हें वो मिलेगा। ये मत सोचो कि तुम मुझे रिश्वत दोगे तब मैं तुम्हारे साथ आदल इंसाफ का मामला करूंगा, ऐसा नहीं है। उनकी मोहब्बत भी मुझे इंसाफ से नहीं रोक सकती, तुम्हारा बुग़्ज़ और तुम्हारी दुश्मनी भी मुझे इंसाफ से नहीं रोक सकता। बनु मखजूम, कुरैश का कबीला है बनु मखजूम, उसकी एक औरत ने चोरी किया, तो उन्होंने उसामा बिन ज़ैद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला, उनको सिफारिशी बनाकर भेजे कि जाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करो कि वो इस औरत से हाथ काटने का जो हुक्म है, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा,
चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली औरतें, उन दोनों के हाथ काट दिए जाए। इस्लामी आदल, इस्लाम ये सिखाता है। जहां इस्लामी ममालिक हैं वो ये करते हैं, हाथ काट देते हैं। तो उन्होंने सिफारिश करना चाहा कि हाथ काटने की सजा को उठा दिया जाए। उसामा बिन जैद जब आकर कहे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतशफअ फी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, क्या तुम अल्लाह के हद में मुझसे सिफारिश करते हो? फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान दिया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना रब्बकुम वाहिद, तुम्हारा रब एक है, व इन्ना अबाकुम वाहिद, तुम्हारा बाप भी एक है, यानी आदम अलैहिस्सलाम। अला ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला ला अहमर अला अस्वद वला ला अस्वद अला अहमर, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इल्ला बित्तक़वा, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कि लोगों सुनो, तुम्हारा रब भी एक है, तुम्हारे वालिद भी एक हैं, और सुनो, तुमने किसी को कोई फजीलत हासिल नहीं है, किस पर? न तो अरबी को अजमी पर, न अजमी को अरबी पर, न काले को गोरे पर, न गोरे को काले पर, इल्ला बित्तक़वा, मगर जो परहेजगार है, तक़वा के एतबार से फजीलत हासिल है। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बिलाशुबह अल्लाह ताला के नजदीक मुअज़्ज़ज़ तरीन वो है जो तक़वा में सबसे ज्यादा, अल्लाह से जो जितना ज्यादा डरेगा वो उतने ही फजीलत वाला इंसान बनेगा, वो उतने ही ज्यादा तक़वा वाला। अतशफअ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, क्या तुम अल्लाह के हद में मुझसे सिफारिश करते हो? आप बशीर वालिद का नाम है, नुअमान उनके बेटे हैं, उनकी कई बीवियां थी। एक बीवी ने कहा बशीर से कि तुम जो है नुअमान के हक में एक गुलाम दे दो, गुलाम नुअमान को दे दो। और भी बेटे थे उनके, तो उन्होंने कहा ठीक है दे देता हूं। तो मुझे ऐसे नहीं, रजिस्ट्रेशन चाहिए, मुझे लिखा हुआ चाहिए कि आपने नुअमान को दे दिया। तो उस वक्त में तो कोई ऐसा नहीं था सरकारी रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो बीवी से कहा कि ऐसा तो कुछ है नहीं, ना एक काम कीजिए, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना दीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह बन जाए, मेरे लिए उतना ही काफी है। वो आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मामला सुनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नुअमान के अलावा और भी तुम्हारे लड़के हैं? जी हैं। उनके लिए भी एक एक गुलाम किए हो? उनके नाम नहीं, बस नुअमान के लिए किया हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फला अशहदु अला जूर, मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनूंगा, ये जुल्म है, जुल्म है। एक को देना और सबको न देना ये जुल्म है, और मैं गवाह नहीं बनूंगा। बने नहीं आप सल्लल्लाहु गवाह। देखिए सहाबी, फिर भी आप सल्लल्लाहु गवाह नहीं बने। ये आदल और इंसाफ था। एक मौके पे आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, मन कान लहू इमराअतान, मन कान लहू इमराअतान, जिसकी दो बीवियां हो, फमाल इला इहदाहुमा दून अल-उखरा जा यौमल क़ियामति व शिक़्क़ुहु माइलुन, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिसकी दो बीवियां हो और उनमें से एक की तरफ माइल हुआ, यानी जायदाद में से हर एक चीज में उसको तरजीह दिया, दूसरों को नहीं दिया, तो सुनो कयामत के दिन वो इस तरह आएगा, उसके एक तरफ मफलूज होगा, उसका एक तरफ का हिस्सा मफलूज, फालिज की बीमारी पैरालिसिस होगा, वो उठा नहीं सकेगा एक तरफ, क्योंकि एक तरफ माइल हुआ था। आदल इंसाफ तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा कर गए, लेकिन हम और आप अपनाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आदल को लाजिम पकड़िए हर चीज में, इबादत में भी, मामलात में भी, मुआशरत में भी, तब जाकर आप एक मौके पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वअदिलू फी औलादिकुम, अपने औलाद में आदल करो, इंसाफ करो। आगे फरमाया, लव अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरक़त लक़तअतु यदहा, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बड़ा जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर फातिमा जो मोहम्मद की बेटी है, अगर वो भी चोरी करे तो मैं उसका भी हाथ काटूं। उसी मौके पे फरमाया था जो औरत की सिफारिश लेकर आए थे, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला। तो जो अपनी बेटी के बारे में ये मामला कर सकते हैं, कह सकते हैं, तो दूसरों के मामले में किस तरह अदल इंसाफ से काम लिए होंगे। फिर ये एक खुलफाए राशिदीन का कैसा अदल था, इंशाअल्लाह तफसील से बात आएगी, जब इंशाअल्लाह एक बाद दिगर आते रहेगा।
صرف سننے سے کام نہیں ہے، ہمیں عمل میں بھی لانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔